from where we left out yesterday. We had a block diagram of an electric drive. Motion control systems are known as drives, and systems obviously involves a number of components, or at least more than one component. Then you call it a system. Else you call it a component. Okay. So motion control systems are known as drives. So motion, as I told you yesterday, are of two definite uh, types in which you classify. The first one is the rotational motion, and the other one is the translation or the linear motion. Okay. So when we have defined these, so these can be achieved particularly or basically by rotational drives, because that rotational is transformed into linear one using gears and wheels. Okay, so the very first thing is that why this is rotational. Mhm. Because you have to confine your driving system or the prime mover. Okay. So that is why it has to rotate at the same point. तभी वो पूरा सिस्टम एक जगह पे रहेगा. जैसे इंजन है आपका, मोटर है आपका, तो इट हैज अ शाफ्ट दैट प्रोवाइड्स अ रोटेशनल मोशन. अगर वो एक लीनियर मोशन प्रोवाइड करने लगेगी, स्पेशल केसेस में होता है, एक आध केस है, कुछ आगे चल के बताएंगे आपको. ठीक है, सो यू हैव टू कन्फाइन इट. कन्फाइन का मतलब वहीं घूमते रहना चाहिए उसे, तभी वो वहीं रहेगा. सो दैट इज वाई वहीं घूमने का मतलब वो रोटेशनल हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वाई these sources, these mechanical power sources generally provide a rotational motion. ठीक है, ये बैक एंड फ्रॉथ और ये सब भी रोटेशनल का ही एक पार्ट हो जाता है. अगर कोई बैक एंड फ्रॉथ मूवमेंट है, जैसे किसी पंचिंग मशीन का है किसी उसका, तो उसमें भी एक आपके पास एक व्हील लगा होता है जो रिवर्स और फॉरवर्ड मूव करता है. और इवन द सेम ड्राइविंग फोर्स जो आपके पास है, चाहे आप मोटर लगाएं उसमें उसमें वैसे वो लगाएं, तो दैट इज अ रोटेशनल वन दैट ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू सम फॉर्म ऑफ मोशन, जनरली इन लीनियर वन. ये आपके पास जो बैक एंड फ्रॉथ मोशन है, यानी आगे पीछे होने का, तो जो आप कटिंग में इस्तेमाल करते हैं अपने, मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने हो सकता है वर्कशॉप में ना देखा हो वो चीज़, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कट कर रहा है ऊपर नीचे आगे, जैसे आप सॉ से कट करते हैं, आरी से कोई चीज़ कट करते हैं, तो आगे पीछे करके कट करते हैं, तो स्टिल दैट मोशन इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड, इज अ सॉर्ट ऑफ लीनियर मोशन. लीनियर फॉरवर्ड, लीनियर बैकवर्ड, तो लीनियर मोशन ही हुआ वो. So in that case also you use the same prime mover that has got a rotational output. ठीक है, तो चीज़ को कन्फाइन करने के लिए अपनी जगह पे, या वहीं रहने के लिए, और टू हैव a practical implementation of that prime mover or the mechanical output with this particular input, you have to confine it at a certain location, and so that is why that output has to be a rotational one. ठीक है, तो हमारे पास आईसी इंजन का भी जो आउटपुट होता है और जो मोटर का भी आउटपुट होता है, दोनों जो हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में रोटेशनल होते हैं. ठीक है, सो नाउ वी कम टू electric drives. Drives employing electric motors are known as electric drives. Okay, because the motor is used as a prime mover here. So if you can consider the basic block diagram of an electric drive, so what we see over here is that we have a source. This is an electrical source, and we have a load. This is a mechanical load. जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ड्राइव है, तो ऑब्वियसली it has to be run by an electric motor. Electric motor requires electrical energy as an input, and the output is mechanical in the form of rotation. So you have a load, and this load, again I repeat, that when you talk about load in case of electric drives, you always mean that it is a mechanical load. ठीक है,
अनलाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे जब भी हम लोड की बात करते थे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लोड का मतलब इलेक्ट्रिकल लोड होता था, बट ड्राइव्स में जब भी हम लोड की बात करेंगे तो द लोड जनरली मीन्स ए मैकेनिकल लोड. So you have a source of energy and you have a load that is to be run using this source of energy. This source is electrical, so you have to transform electrical energy into mechanical energy. So that is why you use a motor for it. Now motor has you require certain load characteristics. Characteristics means that you require certain speed and torque requirements. You specify certain speed and torque requirements. So that is why you must have a motor that can fulfill those speed and torque requirements. So the motor must be able to deliver those speed and torque points what are required by the load. So for that purpose, what is done is that the load may have certain unconventional characteristics or say certain particular defined characteristics that may not be the characteristics of the motor. जैसे आपने डीसी सीरीज मोटर के पढ़ा होगा, तो अगर आप स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उसकी, तो इट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, इफ यू हैव ए DC shunt motor, in that case you have a drooping straight line characteristic. And you also have seen the characteristics of an induction motor, the speed torque characteristic. So that is a sort of an inverted cup type. ठीक है, Gaussian, थोड़ा सा distorted Gaussian सा वो होता है characteristics. So the thing is that these characteristics may not directly match to the characteristics of what is required by the load. So for that purpose, what you do is that you cannot alter the characteristics of the load, because whatever load is to be run is to be run. हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर चार आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने तो चार ही जाने हैं. ठीक है, उसमें ये नहीं हो सकता तीन चले जाएं या एक चला जाए ऐसे करके. ठीक है, for that purpose what you do is that you alter the motor characteristics according to the load characteristics. This is known as characteristic matching of the motor and the load, and the motor is getting input from the source. ठीक है, तो what तो जो source motor को देगा, the motor will run on it. ठीक है, if you directly connect the source to the motor, what will happen is that whatever are the, if you provide say rated conditions to the motor, so the characteristics yield out by the motor will be the rated characteristics. ठीक है, if you somehow alter or manipulate the supply to the motor from the source, यानी ये आपका पास मोटर है, ठीक है, और ये आपके पास सोर्स है, तो आपने क्या किया, इस सोर्स से जो भी आ रहा है, say this is a three phase induction motor and you have a 400 volt supply over here, so you may have, say simply you put a transformer in between it. एक ऑटो ट्रांसफार्मर आपने रखा, जैसे आपने मशीन लैब में देखा होगा, तो उसमें क्या हुआ कि that you can provide a variable voltage to this motor now. The source is constant, जैसे आपके पास पहले था, the motor is the same one, but if you put a auto transformer, three phase auto transformer in between the motor and the load, you can alter the input to the motor. So what will happen, or how the motor will respond? The motor responds with a change in characteristics, that how it changes when you feed a different voltage other than rated. एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जब भी हम डिफरेंट की बात करेंगे उससे रेटेड के अलावा, तो वी नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग मोर देन रेटेड, बिकॉज every machine has got a capacity or a rating, and you cannot go beyond its rating, because the machine will damage in any form, either mechanical, electrical, any parameter. तो जब भी हम एक वेरिएबल इनपुट की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट the values to be equal to rated or less than rated values, either in terms of voltage, in terms of current, in terms of power, in terms of frequency,
in terms of flux, कोई किसी की भी हम बात करेंगे. So in all these cases, when we talk about a different rating other than the rated values, we always talk about, in practical conditions, we always talk about the the values less than the rated value. ठीक है. सो अगर हम हमारे पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और हमारे पास एक सोर्स है रेटेड वोल्टेज का, तो अगर हम उसके बीच में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, द मोटर विल नाउ रिस्पॉन्ड टू द वोल्टेज दैट is fed by this auto transformer, and say if you provide a reduced voltage, you'll be having a different characteristics as compared to the rated one. ये एक सिंपल सा एग्जांपल बताया हमने आपको. इसका मतलब क्या है, दैट द मोटर कैन yield a different characteristic if provided by a variable source and under specified conditions. Specified का मतलब rated के अंदर ही अंदर हो. ठीक है. So now, and when the characteristics of the motor change, they can be made to be matching to the load characteristics by somehow changing the input to the motor. So you have to introduce a power modulator over here, and there may be things that you may have a DC source over here, तो आप उसमें बीच में इन्वर्टर लगाएंगे to make it AC. ठीक है. इन्वर्टर 3 फेज इन्वर्टर लगाएंगे तो आपको इससे AC बन जाएगा. तो अगर आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे जो आपके पास सोर्स है वो DC है, तो आपको बीच में एक 3 फेज इन्वर्टर लगाना पड़ेगा. तो यू हैव टू चेंज द फॉर्म ऑल्सो. इफ यू हैव एन AC सोर्स, जो आपके पास आमतौर से होता है अवेलेबल, एंड यू आर पुटिंग ए DC मोटर, जैसे हमने लैब में भी किया था, तो हमने बीच में एक रेक्टिफायर लगाया था. तो दिस पावर मॉड्यूलेटर एक्चुअली मॉड्यूलेट्स और ट्रांसफॉर्म्स द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आइदर AC टू DC और DC टू DC और AC टू DC, जो भी आपके पास है. रेटेड वोल्टेज उसकी लाने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए, वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करने के लिए, DC में वोल्टेज ऊपर नीचे करने के लिए. सो यू ऑलवेज रिक्वायर पावर मॉड्यूलेटर टू चेंज द फॉर्म. फॉर्म का मतलब AC टू DC और DC टू AC, और द लेवल. लेवल आपके पास DC में खाली वोल्टेज के टर्म्स में होता है, और AC में जो है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है. Either to change the form or to change the level of the supply, you require this power modulator. And why you want to change the level of form of the supply? Form इसलिए change करेंगे because you have to make this supply compatible to the motor. So you have to change the form if required. यानी AC अगर तो DC बनाना है, DC है तो AC बनाना है. और दूसरी चीज़ ये है लेवल, इसलिए बिकॉज यू हैव टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन फर्स्टली. द सेकेंड थिंग इज दैट द सप्लाई सोर्स मे बी नॉट मैचिंग टू द रेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर. सो अगर आपके पास 11 kV की लाइन आ रही है, 400 वोल्ट का आपके पास मोटर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है, और उसे प्रॉपर वो करेंगे. सो यू हैव टू मैच द सोर्स एंड द मोटर ऑल्सो. ठीक है सर. दैट इज डन बाय दिस पावर मॉड्यूलेटर. पावर मॉड्यूलेटर परफॉर्म्स वन और मोर फंक्शंस. अच्छा, एक चीज़ और भी है. इसे ही एक छोटे से एग्जांपल से बताते हैं आपको कि दैट इफ़ you must have learned about reversal of speed direction of 3 phase induction motor. If you interchange the phase sequence of the input supply, the direction of the rotation of the motor will be reversed. ठीक है. ऐसे ही DC के केस में जो है, if you either reverse the field or the armature circuit, in that case what will happen, the direction of the motor will reverse. ठीक है. तो ये जो रिवर्सल का काम है, इसमें क्या है कि ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डन बाय सम मींस. अगर आपके पास कोई मशीन सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, एंड फर्स्ट इट हैज़ टू रन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देन इट हैज़ टू रन इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे आपके पास रेलवे लोकोमोटिव भी है, तो पहले पॉइंट A से B तक जाएगा, ठीक है, और फिर पॉइंट B से A तक आता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इंजन को ही उल्टा करके लगाते हैं, दोनों तरफ से ही वो रन कर सकता है. ठीक है. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दैट केस, यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन, और वो दूसरे डायरेक्शन में उसे मूव कराने लगता है.
तो ऐसा नहीं करते, आपको कोई अलग से कनेक्शंस बदलेंगे करेंगे, तो ये सारे काम जो हैं ये सब पावर मॉड्यूलेटर के ही होते हैं, टू ऑल्टर द कनेक्शंस। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल आया मोटर का, so that is also required by some unit, so that is say the power modulator। ऐसा तो नहीं कर सकते आप कनेक्शंस खोलो, आर्मेचर के बदलो, इधर लगाओ इधर कसो, so that is not possible। Also the thing is that if you see the characteristics of the machine, simply say the induction machine characteristics, so the speed torque one. So what happens is that when the machine reaches the synchronous speed and it is sped after that, यानी वो उससे ज़्यादा स्पीड पे हो जाता है, that means the rotor conductors now move past the stator magnetic field। शुरू में क्या था कि द रोटर ऑलवेज लैग्स और वो स्लिप स्पीड होती थी, और आपने अगर किसी प्राइम मूवर से अगर उसे रोटेट कर दिया more than the synchronous speed, so what will happen, the rotor conductors will now move past the stator magnetic field। So what will happen, the direction of power flow will reverse and the machine will work as a generator। ठीक है, तो ये हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन में चेंज हो जाता है, यानी पहले मोटरिंग मोड में थी मशीन और उसके बाद वही मशीन जो है वो जनरेटिंग मोड में आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ब्रेकिंग मोड भी होता है जिसमें मशीन को हम ब्रेक करते हैं, BRAKE ब्रेक। ब्रेक का मतलब रोकना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे चल के बताएंगे अभी। तो दीज आर मोड चेंजेस इन विच यू हैव टू चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम मोटरिंग टू जनरेटिंग और जनरेटिंग टू ब्रेकिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें बताएंगे हम अभी। सो इवन इन दोज केसेस व्हेन यू हैव टू रिवर्स द सप्लाई कनेक्शंस, होगा क्या अगर हम यहाँ पे मोटर पे हमने प्राइम मूवर लगा रखा है कोई, ठीक है, से द लोड इज वर्किंग एज अ प्राइम मूवर और लोड जो है एक्टिव लोड है, दैट मीन्स इट कैन ड्राइव द मोटर। कैसा कि जैसे आपके पास डाउनहिल या स्लोप से जो है आपके पास कोई रेलवे इंजन उतर रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि नाउ लोड निकल के भागेगा एंड यू हैव टू कंट्रोल दिस विद द हेल्प ऑफ अ मोटर। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट अगर आप उसी डायरेक्शन में मोटर को वो फोर्स देते रहेंगे जिस डायरेक्शन में मोटर पहले मूव कर रहा था, तो इट विल फर्स्ट इट विल रन अवे फ्रॉम ग्रेविटेशन, और दूसरा जो है वो अपनी मोटर फोर्स भी है तो वो उसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, तो द सिस्टम विल गो आउट ऑफ इट। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस, you have to pull out the machine such that you take out the energy from that motor load system out। So in that case the motor now works as a generator and the energy is fed back to the source, ठीक है, or wasted somewhere। So in that case what happens is that you have to change the mode of operation of this machine। So this is, और चेंज ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है कि पहले एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर से इधर जा रही थी, अब जो है मैकेनिकल एनर्जी की तरफ से वापस आके जनरेटर बन के और वापस इसमें सारी है, चाहे आप यहाँ पे कहीं पे वेस्ट करें या सोर्स में वापस दें, ये सारी चीज़ें आएंगी आगे चल के। ठीक है, so what happens is that this power modulator has to control the mode of operation of this machine। Yani either the power of direction of power has to be inward or outward into the motor, that has to be controlled by this power modulator। ठीक है, तो इस पावर मॉड्यूलेटर के तीन चार मोटे मोटे जो फंक्शंस हुए, द फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे है भी, आई विल बी पुटिंग दिस ऑन योर classroom। I've generated the classroom so you people can join the classroom, so you'll be having the regular lecture references on the classroom। So it modulates the power in such a manner that the जो पहला वाला जो मैंने आपको बताया, from the source in such a manner that it impart the speed torque characteristics required by the load। पहली चीज तो पावर मॉड्यूलेटर का ये काम हो गया। The second thing is that uh, it is during transients, starting, braking, speed reversal, all this is to be taken care of by the power modulator because this is the input to the motor। तो जो भी conditions बनेंगी, converts the electrical energy into suitable form, जो आपके पास AC to DC और DC to AC है, और उसके अलावा भी वेरिएबल AC, वेरिएबल DC, फ्रीक्वेंसी AC जो मैंने आपको बताई थी। And at last you have to select the mode of operation of the motor, that is motoring or braking, जो मैंने अभी बताई आपको लास्ट में, that the direction of power
कि कैसा होना है, किस तरफ होना है, क्या होना है. So that is also to be selected by this power modulator. So generally this power modulator is a और देखो सिंपल चीज़ों में क्या हो सकता है दैट यू कैन हैव ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर दैट कैन ऑल्टर द सप्लाई. बट इतनी सिंपल मैकेनिज्म जो है वो खाली डोमेस्टिक लोड्स में ही होते हैं. जैसे आपके पास फैन का रेगुलेटर है, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो पावर मॉड्यूलेटर क्योंकि सोर्स और मोटर के बीच में लगा हुआ है एंड इट इज़ वेरिंग द वोल्टेज दैट इज टेकन टू द मोटर, यानी फैन. आपके पास बाहर से जो है 230 वोल्ट आ रही है और आपको फैन की, अगर आप डायरेक्ट फैन को दे देंगे तो वो इट विल रन एट रेटेड स्पीड. और अगर इफ यू हैव टू लोअर द स्पीड ऑफ द फैन इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि you have to reduce the supply voltage. So what you do, you simply put a regulator, AC regulator. It reduces the supply voltage that is fed to the motor and the fan speed is reduced. इसमें ये वाली चीज़ नहीं होती, ओपन लूप सिस्टम होता है. सेंसिंग कंट्रोल की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सिंपल डोमेस्टिक लोड है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू पुट दैट मच ऑफ से कैपिटल इनटू इट, यानी इतना पैसा आप नहीं लगाएंगे उसमें. ठीक है, तो एक सिंपल सा वो है, तो आपने मैनुअल चेंज कर लिया उसे पावर मॉड्यूलेटर से. तो एक सिंपल सा पावर मॉड्यूलेटर ऐसा भी हो सकता है. एंड यू कैन ऑल्सो हैव quite complex type of power modulators which are employed in electric vehicles and um, electric locomotives in which you have all the things that are to be exercised. यानी जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो उसमें जो है सोर्स आपके पास डीसी बैटरी है, आपने लगा रखा है ब्रशलेस डीसी मोटर. ठीक है, ब्रशलेस डीसी इज एक्चुअली सिंक्रोनस इन्वर्टर फेड सिंक्रोनस मोटर. ठीक है, तो आपके पास सोर्स डीसी है, सोर्स भी ट्रांसफॉर्म करना है, लोड ऑल द टाइम चेंज हो रहा है. कभी आपको कम स्पीड चाहिए, कभी ज़्यादा स्पीड चाहिए, कभी ट्रैफिक आ गया, कभी ब्रेक करना है. ठीक है, so in that case you have a very complex system and you also have a regenerative type of mechanism जिसमें आपको हाइब्रिड, जैसे माइल्ड हाइब्रिड होता है, जैसे आपके पास गाड़ियों में आजकल पेट्रोल कार्स या डीजल कार्स में भी आता है कि जिसमें आपके पास माइल्ड हाइब्रिड में जो है वो बैटरी चार्ज होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ द vehicle, yani whatever energy was wasted in the form of heat in that motor load, in that engine load system is actually taken out in the form of electrical energy and it works, it is used to drive a generator. वही आपके पास alternator जो उसमें काम करता है वही काम करता है and it charges the battery. ठीक है, so you have a very complex system in which you have a direction reversal, you have a form change of electrical energy, you have the torque characteristics to be imparted on the load. ठीक है, ये सारे काम जो हैं वो एक पावर मॉड्यूलेटर करता है. दिस पावर मॉड्यूलेटर इज जनरली ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर. तो आपके पास जो मोटी मोटी बात बनती है वो ये बनती है कि दैट यू हैव अ सोर्स दैट मे बी एसी और डीसी, यू हैव अ पावर मॉड्यूलेटर, दिस इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर with all the feedbacks and sensing unit and the control unit. Then you have a motor. These can be chosen according to the type of loads what you have and what are to be driven according to the load characteristics. जैसे certain characteristics जो हैं आपके पास डीसी से अच्छी रियलाइज हो सकती हैं, certain characteristics एसी से रियलाइज हो सकती हैं, एसी मोटर से अच्छी तरीके से रियलाइज हो सकती हैं, because the speed torque points of the motor load system match to the speed torque operating points of that particular machine. So इस हिसाब से हम इसे चूज करते हैं. अभी हम आगे चल के सारी चीज़ों में पूरा डिस्कस करेंगे. पूरा जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो इसी ब्लॉक डायग्राम के इधर उधर घूमेगा. ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी एक्सप्लेन हो पाएंगी या वो होगा, तो आगे चल के वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे एक्सप्लेन हो जाएंगी आपके पास. ठीक है, एंड देन यू कैन हैव सिंपल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जैसे हमने फैन टाइप ऑफ लोड बताया जिसमें आपके पास खाली ऊपर का ही पार्ट होगा, सेंसिंग और कंट्रोल नहीं होगा. और आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, सारे तरह के जो यूजर्स हैं पावर के, मॉड्यूलेट करेगा, पावर ट्रांजिएंट का भी ख्याल रखेगा, कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, और मोड ऑफ ऑपरेशन भी सेलेक्ट करेगा, मोटरिंग, ब्रेकिंग, ये सारे काम इसके पावर मॉड्यूलेटर के आ जाते हैं. ठीक है, so and generally a power modulator is a power electronic converter. ठीक है, ऑल्सो यू कैन हैव, आप एक ट्रांसफार्मर को भी एक पावर मॉड्यूलेटर बना सकते हैं. जो भी चीज़, जो भी
जो कंपोनेंट है जो काम करेगा इनमें से कोई सा भी एक, मॉडुलेट करेगा पावर फ्लो को, ये करेगा ट्रांजिएंट में वो कर सकता है, तो कोई सा भी एक होगा तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पावर मॉडुलेटर. Either one or all of them, if taken care of by a particular system, is considered to be a power modulator. Okay, then after that, we have quite obvious topic, that is advantages of using electric drives. Um, we have two types of drives, as I told you yesterday. The first one is the mechanical drive, and जो आपने सबसे सिंपल एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपके पास आईसी इंजन बेस्ड ड्राइव होती है, जैसे मोटरसाइकिल्स हैं, आपकी कार्स हैं, स्कूटीज हैं, ठीक है. सो दीज आर मैकेनिकल ड्राइव्स. और उसके बाद इवन पावर प्लांट्स में भी जो चलता है आपके पास, कि यू हैव स्टीम टर्बाइंस एंड देन यू हैव जनरेटर्स, उसमें बीच में कंट्रोल भी होता है आपके पास, तो वो भी ड्राइव्स ही होती हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द मोशन. ठीक है, इन ऑल द केसेस तो मोशन कंट्रोल सिस्टम्स आर नोन एज ड्राइव्स. सो इन सब में जो आपके पास एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, तो इनके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं ओवर इलेक्ट्रिकल प्राइम मूवर्स. ठीक है, यानी मोटर्स के ऊपर, बिकॉज यू हैव ऑब्वियस एडवांटेजेस के क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एंड इट इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट, यानी इलेक्ट्रिकल मोटर जो है क्वाइट कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू आईसी एंड एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफ़र बहुत आसानी से होता है. इट कैन वर्क इन एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, इट कैन वर्क इन वेरी एडवर्स कंडीशंस, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर. ठीक है, आप मोटर ले जा सकते हैं, मगर आईसी इंजन और ये सब नहीं ले जा सकते इतनी आसानी से. ठीक है, तो ये सारी होती है. फॉल्ट डिटेक्शन काफ़ी आसान होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स. इसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू, कम होता है और आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव्स, बिकॉज the components are less and the faults are quite visible in terms of detection. काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, वरना मैकेनिकल जो है वो उसमें कई सारी सेटिंग्स होती हैं, होता है, तो वो चीज़ें परेशान करती हैं. सो ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है कि you can have a wide range of speed, torque characteristics and power characteristics in case of electric motors, and they can be varied very easily also. आपके पास एक आईसी इंजन है या कोई इवन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, तो दोनों दोनों चीज़ों में जो है आपके पास, अगर एक्सटर्नल कंबस्शन है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप अगर स्टीम टरबाइन ले रहे हैं तो थ्रॉटल आप कंट्रोल करें, उसकी फायर कंट्रोल करें, स्टीम कंट्रोल करें, बहुत सारी चीज़ें. उसके बावजूद भी दैट यू कैन नॉट अचीव ए वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क. ठीक है, यानी आपके पास एक स्पीड एंड टॉर्क की कोई लाइन होगी या कोई कर्व होगा, उससे आगे पीछे आप बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते. But in case of electric motors, what we have is that we can alter the characteristics of the machine very widely on the speed torque plane. यानी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कहीं भी घुमाते फिराते फिरिए, कि आप उसकी वोल्टेज कम कर दें, फ्रीक्वेंसी कम कर दें, ठीक है, उसकी बाहर से कुछ पैरामीटर चेंज करें, रेजिस्टेंस चेंज करें, ये करें. ठीक है, तो ये करके आप फ्रीक्वेंसी चेंज करें, तो आप उसकी काफ़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं ऑन द स्पीड टॉर्क प्लेन. So what happens in that case is that the control of the load becomes quite easy, and it is generally not say compromised. कि आपको जहाँ पे भी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, आप बहुत आसानी से वहाँ पे जाके मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ताकि वही लोड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिजायर्ड आर बीइंग पुट इनटू ऑपरेशन. But that is not the case for internal combustion and external combustion engines. You have to make a compromise. उसके बाद आप बाहर मैकेनिकल गियर्स लगाइए, ये सब लगाइए, मगर इतना इतना सिंपल फिर भी नहीं रह जाती चीज़ें. तो एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है इन चीज़ों में, बिकॉज व्हेन यू पुट मैकेनिकल गियर्स you lose a lot of energy or power
इन दैट केसेस, क्योंकि गियर ट्रांसमिशन जो है वो बहुत से बहुत 20%, 30%, 40% जो है वो एनर्जी वेस्ट करता ही करता है, ठीक है. So that is why we generally don't prefer to have these IC engine based or drives other than electric drives. Simply say mechanical drives as compared to the electrical ones, because um, of all these advantages, particularly and technically due to the speed torque and power characteristics that can be very easily manipulated when you have electric drives. बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं आपके पास के, कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कम है, कहीं भी चल जाएगी, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में उल्टी सीधी आप कैसे भी लगा दें, भाई वर्टिकल माउंटेड हो, छत पे लगा दीजिए आप, फैन लगा हुआ है आपका, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग, मगर इंजन तो नहीं लगा देंगे आप छत पे. सो दैट इज़ नॉट दैट सिंपल. सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, बट इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स है, अपने जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसमें ये है कि that the speed torque characteristics of the electric drives are very versatile on the speed torque plane, and they can be altered very easily, ठीक है. So and that is not the case for mechanical drives. So that is why we prefer to have electric drives as compared to मैकेनिकल ड्राइव्स. और बहुत सी जगह तो रिप्लेस हो भी गया है इंडस्ट्रियल. पहले पहले इंडस्ट्रीज जो थी, जो 1800s में, 1900s में चलती थी, तो वो ज़्यादातर जो है वो एक्सटर्नल कंबस्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी थी भी नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही इंजन बेस्ड होती थी, या एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन. जब भी ये आया था आपके पास स्टीम का वो आया था, पहले स्टीम इंजन आया था, फिर उसके बाद आपके पास ये इंटरनल कंबस्शन आया था, तो सब इसी से ही चलता था, ठीक है. अब भी जो है एटलीस्ट 30-40 years पहले तक भी we have a lot of we had a lot of say industries working on डायरेक्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन्स. बट उसके बाद ड्राइव्स का जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, तो एटली नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मोशन ड्राइव इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ठीक है. So I think it's enough for today. Tomorrow is a holiday. So the next week we'll be starting some basic parts of electrical drives. रहेंगे हम अभी इसी के ही इर्द गिर्द, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम के. I'll be putting this on the classroom for your reference. So you people are requested to join the classroom and get updated whatever is required. ठीक है. Anybody wants to ask anything regarding the topic that I covered today? किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है मैम. No, sir. ओके, थैंक यू. Thank you, sir.